Significance of principles of management. The principles of management derive their significance from their utility. They provide useful insights to the managerial behavior and influence managerial practices. Managers may apply these principles to fulfill their tasks and responsibilities. Principles guide managers in taking and implementing decisions. The quest of the management theorist has been and should be to unearth the underlying principles with a view to using these under repetitive circumstances as a matter of management habit. Simply, आप मुझे बताइए हम कोई भी चीज़ यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें यूटिलिटी होती है. दैट मीन्स हमारे वांट को सेटिस्फाई करने का पावर होता है. ठीक वैसे ही सेम इज द केस विद दिस प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. इसमें यूटिलिटी है, ये मैनेजर्स के वांट को सेटिस्फाई करते हैं. मैनेजर्स हैव टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम अदर्स. उनको डिसीजंस लेने पड़ते हैं, सर्कमस्टेंसेस को समझना पड़ता है और सर्कमस्टेंसेस जैसे होंगे, रियलिटीज जैसे होंगे, उसके हिसाब से अडॉप्ट करना पड़ता है, रिएक्ट करना पड़ता है. और प्रिंसिपल्स इसी में उनकी हेल्प करते हैं. एंड रिपीटेटिव नेचर के जो प्रॉब्लम्स हैं या जो प्रपोजिशन सामने आते हैं उनको टैकल करने में ये हेल्प करता है. प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियलिटी. हकीकत को, सर्कमस्टेंसेस को समझने में, उसका एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं ये प्रिंसिपल्स. द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड द मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू द रियल वर्ल्ड सिचुएशंस. Adherence to these principles will add to their knowledge, ability and understanding of the managerial circumstances and situations. It will also enable managers to learn from their past mistakes and conserve time by solving recurring problems quickly. As such, management principles increases managerial efficiency. For example, a manager can leave routine decision making to his subordinates and deal with exceptional situations which require his or her expertise by following the principles of delegation. Simply, ये प्रिंसिपल्स किसी भी मैनेजर को रियल लाइफ सिचुएशन को समझने, उसका एनालिसिस करने में हेल्प करते हैं. केवल ये नहीं, ऐसे रिपीटेटिव सर्कमस्टेंसेस में क्या करने पर क्या होगा उसका गाइडेंस भी देते हैं, गाइडलाइंस भी देते हैं. अब जब जब वो रिपीटेटिव सर्कमस्टेंसेस सिचुएशन क्रिएट होंगे, मैनेजर को सिंपली यही करना है, जो एप्लीकेबल प्रिंसिपल है उसके हिसाब से एक्शन लेना है, डिसीजन लेना है और मैटर सॉर्ट आउट हो जाएगा. इससे वो रिपीटेटिव टास्क से बच जाएंगे, उनकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी. इनफैक्ट वो डेलीगेशन का प्रिंसिपल यूज करते हुए रिपीटेटिव नेचर के जो ये टास्क हैं जिसके लिए कोई प्रिंसिपल फिट हो चुका है, वो सबऑर्डिनेट को हैंडल करने के लिए दे सकते हैं और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस वो खुद हैंडल करेंगे. इससे उनका टाइम सेव होगा, उनका नॉलेज बढ़ेगा, एबिलिटी बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी रियल लाइफ सिचुएशंस की. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. Resources, both human and material, available with the company are limited and scarce. There is scarcity of resources. They have to be put to optimum use. By optimum use, we mean that the resources should be put to use in such a manner that they should give maximum benefit with minimum cost. Maximum benefit, minimum cost. Principles equip the managers to foresee the cause and effect relations of their decisions and actions. As such, the wastage associated with the trial and error approach can be overcome. Effective administration necessitates impersonalization of managerial conduct so that the managerial power is used with due discretion. Principles of management limit the boundary of managerial discretion so that their decisions may be free from personal prejudice and bias. For example, in deciding the annual budgets of different departments, rather than the personal preferences of managers, managerial discretion is bounded by the principle of contribution to organizational objectives. This simply means these principles help in the optimum utilization of resources. Reason? वैसे अगर ये प्रिंसिपल्स नहीं होते तो मैनेजर्स ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते, जिसको हम रूल ऑफ थंब भी बोल सकते हैं, और ट्राई करेंगे, काम लगा तो ठीक है, नहीं तो फिर रिसोर्सेस, ये एनर्जी, टाइम, एफर्ट सब वेस्ट हो जाएंगे, फिर कोई और तरीके से वो काम करेंगे, इससे तो टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स और वेस्ट होंगे. ये प्रिंसिपल फॉलो करके, क्योंकि इसमें कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है कि ऐसा करने पर ऐसा होगा,
तो फिर हम डायरेक्टली जो एप्लीकेबल प्रिंसिपल हैं उसका यूज करते हुए डिजायर्ड रिजल्ट पा सकते हैं, और इससे ट्रायल एंड एरर अप्रोच से हम बच जाएंगे, जिससे कि ये वेस्टेज कम हो जाएंगे और हमें रिसोर्सेज का मिनिमम से मिनिमम यूज करना है और बेनिफिट मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सकता है। एंड द सेकेंड थिंग इज, जब ये प्रिंसिपल्स फॉलो करेंगे तो मैनेजर्स को अपना ट्रायल एंड एरर मेथड यूज नहीं करना है, अपना डिस्क्रिशन यूज नहीं करना है, क्योंकि अगर वो अपना डिस्क्रिशन यूज करेंगे तो अभी मिस्टर एक्स हैं, फिर मैनेजर मिस्टर वाई आ गए तो वो अपने तरीके से काम करेंगे। जबकि अगर सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करें तो फिर पर्सनल प्रेजुडिस, पर्सनल बायस नहीं आएंगे, तो उनका डिसीजन उतना ही ज़्यादा ऑथेंटिक भी होगा, ऑब्जेक्टिव भी होगा और फ्रूटफुल भी होगा। एंड देयरफॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में यह भी बोला गया है कि ये प्रिंसिपल्स मैनेजमेंट के डिस्क्रिशनरी पावर को लिमिट करते हैं, तो वो अपनी मनमर्जी नहीं कर पाएंगे। एंड दिस इज व्हाट impersonalization of managerial conduct means. Scientific decisions must be based on facts, must be thoughtful, justifiable, timely, realistic, and must be subject to measurement and evaluation. Management principles help in thoughtful decisions because they are based on logic rather than blind faith. Again, science, not rule of thumb. Management decisions taken on the basis of this principle are free from bias and prejudice, and they are based on the objective assessment of the situation. Therefore, these principles helps in scientific decisions and that are free from bias and prejudice. The point to be noted, the words prejudice, personal bias यहाँ पे भी यूज हुआ है एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में भी यूज हुआ है, लेकिन दोनों में जो एम्फसाइज किया गया है वो अलग अलग चीज़ों के ऊपर किया गया है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज में मेन था हमें टाइम, एनर्जी, एफर्ट सेव करने हैं, रिसोर्सेज का मिनिमम यूज़ करना है, मैक्सिमम बेनिफिट गेन करना है। जबकि यहाँ पे है डिसीजंस जो होने चाहिए वो साइंटिफिक होने चाहिए, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होने चाहिए, थॉटफुल होने चाहिए, जस्टिफाइबल होने चाहिए, टाइमली होने चाहिए, रियलिस्टिक होने चाहिए और उसका मेजरमेंट भी हो सकता हो, दैट इज फ्री फ्रॉम बायस होने चाहिए। तो किस चीज़ के ऊपर एम्फसाइज किया गया है? रिसोर्सेज का अच्छा यूज़ करने के ऊपर है, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। और अगर डिसीजंस जो हैं साइंटिफिक हैं, लॉजिक के ऊपर बेस्ड हैं, फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड हैं, इसके ऊपर एम्फसाइज किया गया है केस स्टडी में, तो आपको आइडेंटिफाई करना है साइंटिफिक डिसीजंस। मीटिंग चेंजिंग एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट्स, जैसे हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, एनवायरमेंट भी बदलता जा रहा है। Although the principles are in the nature of general guidelines, but they are modified and as such help managers to meet the changing requirements of the environment. Environment बदल रहा है तो ये principles को भी modify करके उसके मुताबिक बदला जा सकता है और अप्लाई किया जा सकता है। We have already studied that the management principles are flexible to adopt the dynamic business environment. For example, management principles emphasize division of work and specialization. For example, आउटसोर्सिंग ऑफ कोर एंड नॉन कोर एक्टिविटीज इन बीपीओ केपीओ। सर्कमस्टेंसेस बदल रहे हैं तो हम भी अपनी स्ट्रैटेजी को बदल सकते हैं। अब तक हम आउटसोर्सिंग का यूज नहीं करते थे, अब जो हालात हैं शायद हम ज़्यादा आउटसोर्सिंग का यूज करने लगेंगे। प्रिंसिपल्स वही रहेंगे, उनको मॉडिफाई करने, अप्लाई करने का तरीका थोड़ा बदल जाएगा। डिवीजन वहां पे भी होगा लेकिन अलग तरीके से, बेस्ड ऑन द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। Fulfilling social responsibility. The increased awareness of the public forces businesses, especially the limited companies, to fulfill their social responsibility. Management theory and management principles has also evolved in response to these demands. Moreover, the interpretation of the principles also assume newer and contemporary meanings with the change in the time. For example, अगर हम इक्विटी की बात करें, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, पहले प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी केवल यही रेस्ट्रिक्टेड मीनिंग हुआ करता था कि वर्कर्स को फेयर वेजेस दें, अपॉर्चुनिटीज दें, वर्किंग कंडीशंस दें। लेकिन आज के हालातों में इक्विटी वर्ड, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का जो मीनिंग है, इंटरप्रिटेशन होगा, वो केवल वर्कर्स की तरफ नहीं, वर्कर्स का केयर करना,
कस्टमर केयर, इन्वायरमेंट का केयर करना, बिजनेस एसोसिएट्स के साथ डीलिंग, ये सब भी इस प्रिंसिपल में आ गए हैं. फॉर एग्जांपल, कई सारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जब कहीं यूनिट सेट करते हैं तो केवल वो यूनिट प्रोडक्शन यूनिट सेट नहीं करते, पूरा एंटायर टाउनशिप डेवलप करते हैं, जिसमें न केवल वर्कर्स के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए वो इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाते हैं, जिसमें सारी फैसिलिटीज होगी. वर्किंग भी होगा तो वहाँ सोशल लाइफ भी होगी, वहाँ रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी होंगे, हेल्थ फैसिलिटीज भी होंगी, एजुकेशनल फैसिलिटीज भी होंगी. टेक अनदर एग्जाम्पल ऑफ श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़. मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर द कोर ऑफ द मैनेजमेंट थियरी. क्योंकि ये मैनेजमेंट ऐसा साइंस होने के लिए इसमें नॉलेज, थेरेटिकल बेस ऑफ नॉलेज होना चाहिए, बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स होने चाहिए, और यही तो प्रिंसिपल इनके कोर में है. एज सच दीज आर यूज्ड एज अ बेसिस फॉर मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. These principles provide the basic groundwork for the development of management as a discipline. प्रोफेशनल कोर्सेज, चाहे वह MBA करें, BBA करें, CA करें, बेसिक ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल हर जगह पढ़ाए जाते हैं एट द बिगनर्स लेवल. These principles are significant because they contribute towards development of management as science, art and profession. How to memorize all these points in a sequential order? Please concentrate. साइन करके मैनेजर ने रियलिटी में ऑप्टिमस प्राइम में साइंटिफिक चेंजेस करने की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट को दे दी. नाउ हाउ टू रिकंस्ट्रक्ट ऑल द पॉइंट्स. साइन करके सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. मैनेजर ने रियलिटी में प्रोवाइडिंग मैनेजर्स विथ यूजफुल इंसाइट्स इनटू रियलिटी. ऑप्टिमस प्राइम, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. में साइंटिफिक डिसीजंस. चेंजेस, मीटिंग चेंजिंग एनवायरनमेंट रिक्वायरमेंट्स. करने की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अपने ट्रेनिंग एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट को मैनेजमेंट ट्रेनिंग एंड एजुकेशन रिसर्च.